على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نام شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آج 11 اکتوبر 2021 بروز پیر ہے، اور آپ کے یہاں جامعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحصیل جلال پور پیروالا ضلع ملتان میں مولانا قاری مختار الحق صاحب کی دعوت پرخلوص پر حضرت مولانا غلام سرور شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند مولانا معاویہ بھائی عثمان حیدر، ان حضرات کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اسٹیج پر قاری محمد توفیق، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، اس سمیت باقی علماء کرام موجود ہیں۔ میں ایک ایک سے فرداً واقف نہیں ہوں، اس لیے میں سب حضرات کی قدردانی کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ ابھی صاحبزادہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولانا تھوڑی نرمی، میں نے کہا میں نے کون سی سختی کی ہے، جو وقت طے ہے وقت پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں نے کبھی مجمع سے ڈیمانڈ نہیں کی آپ پہلے آئیں، آپ بعد میں آئیں، آپ اونچی سبحان اللہ کہیں، آپ آہستہ کہیں۔ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جو وقت دیا ہے، نو لیٹ اور نو ویٹ، وقت کی پابندی کریں تاکہ میزبان بھی خوش رہے، مہمان بھی خوش رہے۔ میں نہ کسی کا وقت کھاتا ہوں اور نہ اپنا وقت کھانے دیتا ہوں۔ اس میں سفید داڑھی، کالی داڑھی، بزرگ، قاری، حافظ، عالم، مفتی، مولوی سب برابر ہیں، وقت وقت ہوتا ہے۔ میں نے ان حضرات سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ہی دن 11 اکتوبر اس پورے مہینے میں ایک دن میں نے گھر کا رکھا ہے۔ ان حضرات نے مجھے جو بات کی ہے تو ان کے والد مکرم کو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ یقین مانے مولانا غلام سرور اور جمعیت علماء اسلام لازم اور ملزوم ہے، تو مجھے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔
میں نے حضرات سے کہا اچھا وقت کی آپ پابندی کرنا، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ اب یہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آخری بیان کریں۔ کیوں بھائی، کیوں آخری کریں؟ بھائی بات ہوئی ہے عشاء کے بعد، آپ مجھے گفتگو دیں رات 12 بجے، رات 10 بجے، فائدہ؟ میں ظہر میں پہنچ گیا ہوں، میں نے ظہر کی نماز یہاں جلال پور پیر والا انٹرچینج اتر کے پڑھی ہے، میں کھوتے کو ہاتھ نہیں لایا، میں منہ چاہ کے بیٹھا رہا ہوں۔ آپ لوگ ناراض نہ ہوں، وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ کہ مجھے کہہ رہے تھے ابھی ساتھی نہیں آئے، میں نے کہا جو نہیں آیا وہ خود پچھتائے گا، ہمیں کیا مسئلہ، کل سے جلدی آئے گا۔ بس مولانا میں جلسے کا جلدی شروع کرنے کا قائل ہوں، عشاء کے بعد لیٹ آور مجھ سے گفتگو نہیں ہوتی۔ کانفرنس کا عنوان ہے سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کسے کہتے ہیں، سید کسے کہتے ہیں، اور بشریت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، یہ تین باتیں آج ہماری گفتگو کا محور، عنوان اور موضوع ہے۔ سیرت کہتے ہیں کردار کو، کریکٹر کو، حالات کو، واقعات کو۔ کیفیت و حیت کا نام سیرت ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس سے استعمال کیا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی، تو سیرت کیفیت کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 سید، سید کا معنی ہوتا ہے سردار، وڈیرا، قائد، رئیس، لیڈر، سربراہ۔ اور بشر یہ بشریت سے ہے کہ پوری کائنات میں انسانیت کے سردار کی کیفیت و حالات کا ذکر کیا جائے۔ ویسے تو مخلوقات بہت زیادہ ہے، فرشتہ بھی مخلوق ہے، جنات بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، باقی انواع و اقسام کی مخلوقات بھی ہیں، لیکن کسی مخلوق کو اشرف المخلوقات نہیں کہتے۔ اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو انسان کو کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسان دی بوتھی سونی ہے، انہیں تے پیپٹ باندھن، کیوں اسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں سردار انسان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اسی وجہ سے فرشتہ کوئی اشرف المخلوقات کی صفت نہیں رکھتا، جنات اشرف المخلوقات کی صفت نہیں رکھتے، انسان حضور پاک کی سرداری کی وجہ سے اشرف المخلوقات کی صفت رکھتا ہے۔ اور آج ہم نے اسی عنوان کو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، آپ توجہ رکھیں گے نا؟ سیرت کردار، سیرت حالات۔ دنیا میں یہ بات طے ہے، حالات تب شروع ہوتے ہیں جب کوئی آ جائے، تعارف ہو جائے، پہچان جان پہچان ہو جائے، اس کے بعد اس کے حالات، اس کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ مثلاً قاری صاحب کے گھر بچہ پیدا ہو، پیدا ہونے کے بعد کہا جائے گا یہ بچہ ایسا ہے۔ مولانا کے گھر اولاد ہو، پیدا ہونے کے بعد بتایا جائے گا اس کی باتیں ایسی ہیں، یہ ایسا ہے، مزاج ایسا ہے، فلاں یوں ہے، یوں بتایا جائے گا۔ پیدائش کے بعد یہ دنیا میں ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر ایسے نہیں ہیں کہ جب آئیں تو دنیا جانے، جب آئیں تو لوگ پہچانے، جب دنیا میں آئیں تو تعارف ہو۔ ابھی کائنات میں حضور آئے نہیں تھے، کائنات پہلے جان چکی تھی، کائنات پہلے تعارف رکھتی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، ایک شخص نے خط لکھتا ہے، سیرت کے متعلق 2 سوالات کرتا ہے، حضرت جواب تحریر کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد خط کا جواب تحریر شروع کیا، اذان صبح پہ خط کا جواب مکمل کیا۔ جلال پور کے دوستو، وہ صرف خط کا جواب نہیں ہے بلکہ النبی الخاتم نام سے پوری سیرت النبی پر کتاب بن چکی ہے۔ وہ اس کی ابتدا میں لکھتے ہیں، فرمایا یوں تو سب آئے، سبھی آئے،
सभी औकात में आए, लेकिन आए जाने के लिए, पर एक आमना का दुर्रे यतीम है जो आया आने के लिए, आकर छा जाने के लिए। हुजूर पाक का तारुफ, जिक्र, पहचान, शनासी ये हुजूर पाक के आने से पहले है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपकी खिदमत में मुस्तदरक अलस्सहीहैन इमाम अबू हाकिम नेशियापुरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी किताब तवारीख अल-अंबिया पेश कर रहा हूं। वो फरमाते हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ने भूल की माफी को कबूल फरमाया तो वजह मेरे पाक पैगंबर की जात अक़दस है। भाई बात क्या थी? हजरत उमर ने फरमाया हमें हमारे पाक पैगंबर ने यह वाकया खुद बताया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, भूल की पादाश में रब ने जमीन पे भेजा, जमीन पे आ गए, अल्लाह से भूल की माफी मांगना शुरू कर रहे। अल्लाह रब, अच्छा मैं यहां रोक के कहूं, आप कहेंगे भूल तो माफ है, भूल की माफी का क्या मतलब? मैं वाकये से पहले मसला अर्ज कर दूं। याद रखें, एक भूल नबी की है, एक भूल उम्मती की है। भूल भूल में फर्क है। हजरत आदम की भूल उम्मती वाली नहीं है, हजरत आदम की भूल नबी वाली है। आप कहेंगे भूल का फर्क, आओ सुनो मैं भूल का फर्क देता हूं। अगर आप नमाज पढ़ें और नमाज में भूल के बात कर लें, आपकी नमाज होगी? बोलिए बोलिए, सब बोलिए। भाई इतनी रात अभी नहीं हुई, मुझे सब जवाब दीजिए, आपकी नमाज होगी? अगर आप रोजा रखें और रोजे में भूल के पानी पी लें, रोजा होगा? शाबाश शाबाश, जबरदस्त, एक्सीलेंट। वाकई रात है, वाकई रात में गुफ्तगू कर रहा था एक जगह, मैंने उनसे कहा इमाम कौन होता है, इस पर बात की। तो मैं बताना चाहता था कि इमाम के आगे भी कोई नहीं होता और इमाम के बराबर भी। तो मैंने उन्हें कहा कि इमाम वो होता है जिसके आगे तो आगे, लोगों ने कहा पीछे ही कोई नहीं होता, पीछे ही कोई नहीं होता। तो मैंने कहा मौलाना अफजल और लेट जलसा शुरू कराओ, लोगों का ये हाल होता है। ओ धीरात ले सुते पैन मौलवी हक के ते साचे शोधे कड़ा पता लग रहा है, मैं जीता जागता मजमा दो, तो अभी तो इतनी रात नहीं है। तो मैंने कहा भाई इमाम वो नहीं होता जिसके पीछे कोई ना हो, ठूठ इमाम हो सी, इमाम होता यदि अग्गू कोई ना हो तो बराबर कोई ना होगा। तो इसलिए आपको भी जगा रहा हूं, आप भूल के नमाज में बात करें, नमाज नहीं होगी। भूल के पानी पी ले, रोजा हो जाएगा। मैं सवाल कर रहा हूं, अगर भूल माफ है तो फिर नमाज हो जानी चाहिए, और अगर भूल माफ नहीं है फिर रोजा क्यों नहीं टूटता? वजह कुछ और है। आओ मैं वजह पेश कर रहा हूं। कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी रहमहुल्लाह के उलूम को सामने रखते हुए 50 साल तक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हजरत कारी तैयब कासमी रहमहुल्लाह इनके पोते भी हैं, इनके उलूम के शारे भी हैं। वो फरमाते हैं जिस जिम्मेदारियों की बात है, एक जिम्मेदारी नमाजी की है, एक जिम्मेदारी रोजेदार की है। कहा जी वो कैसे? कहा उस्ताद ने कहा बेटा मेहमान आए हैं, जाओ आप कोई चीज लेकर आओ खाने की। उस्ताद ने 6 7 5 काम बता दिए या एक बताया? क्या कभी कभी उस्ताद एक बताता है कि जाओ पानी लेकर आओ, शागिर्द पानी लेने जाए और वही पानी ही भूल के आए, तो उस्ताद का हक बनता है कि गुस्सा करे, डांट डिपट करे कि मैंने एक काम दिया था वो भी भूल गया। हाँ, अगर उस्ताद 20 काम दे, पानी भी लाना है, मिनरल भी लाना है, सौदा भी लाना है, नमक भी लाना है, दूध भी लाना है, चीनी भी लानी है, घी भी लाने हैं, प्याज भी लाने हैं, टमाटर भी लाने हैं, शागिर्द सब लाए, एक दो भूल जाए, अब गुस्सा नहीं बनता, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, एक चीज भूल गया है तो चलो कुछ नहीं होता। का इसी तरह एक जिम्मेदारी नमाजी की है, एक जिम्मेदारी रोजादार की है। जो जिम्मेदारी रोजादार की है वो क्या है? खाना भी छोड़ेगा, पीना भी छोड़ेगा, भूख बर्दाश्त करेगा, प्यास बर्दाश्त करेगा,
तिलावत भी करेगा, रोजा भी रखेगा, तस्बीहात भी करेगा, थकेगा तो नींद भी आएगी, ताजर है तो तिजारत भी करेगा, उसके बाद नमाजें भी पढ़ेगा, वुजू भी करेगा, वॉशरूम भी अटेंड करेगा, ये सारे काम इसके जिम्मे हैं। अगर ये एक चीज भूल बैठा कि बेचारा पी बैठा तो कुछ नहीं होता, बहुत सी जिम्मेदारियां थी, एक भूला है, लेकिन नमाजी पे आओ, नमाजी के जिम्मे और कोई काम नहीं है, एक ही काम है, खामोश होके अल्लाह से लो लगा। ये एक भी भूल बैठा तो नमाज नहीं होगी। तो एक भूल नमाजी की है, एक भूल रोजेदार की है। उम्मती भूले, हुजूर पाक ने फरमाया रुफिया उम्मती अन सलास, उम्मती से भूल चूक माफ है। क्यों माफ है? उम्मत का मामला और है, उम्मत बिन देखे रब को मानती है, युमिनून बिल गैब के दर्जे पर फायज है। वो अल्लाह की वादानियत की मशाहिद, अल्लाह की वादानियत को अपनी आंखों से नजारा करने वाले नहीं होते। लिहाजा उम्मती भूल जाए, भूल चूक माफ है, लेकिन नबी ऐसा नहीं है। नबी मकतूल फिल्ला है, वो अल्लाह में सोचने वाला है। अंताबुदल्लाह कान्ना का तरा है, वो डायरेक्ट मशाहिदात इलाहिया पर, फयूजात इलाहिया पर नजर रखे हुए है। अगर नबी भी भूल जाए तो अल्लाह से पूछ होती है, क्यों भूले? उम्मती की भूल और है और नबी की भूल है और है। मैंने तभी कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम वही लौटा है जो मैं बात करे, तो मैंने दरमियान में एक बात समझाई है। हजरत आदम से भूल हुई, ला तकरबा हाज़ी शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। भूले से करीब चले गए, गलती से नहीं, भूले से। कुरान ने भूल के लफ्ज बोला है, वलकद अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया वलम नजिद लहु अज़मा। इरादा नहीं था, भूले से गए हैं, भूल हुई। रब ने भूल की पादाश में जमीन पर भेज दिया। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे पाक पैगंबर ने हमें बताया, हजरत आदम जमीन पर दुआएं मांगते। एक दुआ वो है जिसे कुरान करीम ने रब्बना ज़लमना अनफुसना के अल्फाज से जिक्र की है। ये अल्लाह के कुरान की दुआ है। हम देवबंद वाले इस दुआ के लफ्जों के भी कायल हैं। एक दुआ वो है जो हुज़ूर पाक के फरमान में है। हम देवबंद वाले जैसे कुरान मांगते हैं वैसे हुज़ूर पाक का फरमान मांगते हैं। हजरत आदम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्क मुहम्मदिन अन तग़फिर ली, मौला मुझे मोहम्मद करीम के वसीले से माफ फरमा दे। अब मैं बात कर रहा था कि मेरे पाक पैगंबर वो शख्सियत, मेरे पाक पैगंबर वो नबी, मेरे पाक पैगंबर का दर्जा, मर्तबा, हैसियत, वैल्यू ये है, अभी आए नहीं है, आने से पहले दुनिया जानती है। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दुआ के लफ्ज सुने, अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु, ए आदम हुज़ूर पाक को कैसे जानते हो, अभी तो मैंने उसे दुनिया में नहीं भेजा। हजरत आदम ने वाक़या अर्ज किया, लम्मा खलक़तनी बियदिक, आपने मुझे पैदा किया, वनफ़ख़्त फ़ीय मिन रूही, रूह मेरे अंदर दाखिल की, फ़रफ़अतु रासी, मैंने सर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबा, मैंने आपके अर्श पे लिखी हुई इबारत देखी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फ़ज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैक, मैं ये बात समझ गया आपके नाम के साथ जिस शख्सियत का नाम है वो आम नहीं अहम है, वो आम नहीं खास है, बड़ा रुतबा, बड़ा दर्जा, हैसियत उस शख्सियत की है जिसका नाम आपके नाम के साथ आपके अर्श पे लिखा हुआ है। या मौलाया सालतुका बिहक्किही, मेरा अल्लाह मैं उस शख्सियत का वास्ता देकर आपसे अपने भूल की माफी की दुआ कर रहा हूँ। जलालपुर के दोस्तों, हजरत उमर बताते हैं, इमाम हाकिम मुस्तदरक में तारीफ फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, या आदम गफरतु लक, ए आदम मैंने तेरी भूल माफ कर दी, लेकिन याद रखना वलौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक, हुजूर न होते मैं तुम्हें भी पैदा न करता। मैंने दावा पेश किया था कि लोगों के यहाँ वाकयात उस वक्त होते हैं जब बंदा आ जाए, यानी सीरत के आगाज और इब्तिदा के मामले किसी के आ जाने के बाद। मौलाना का बेटा अभी पैदा नहीं है, जानेंगे कैसे? जब पैदा हुआ आए है बताएंगे यूं है यूं है यूं है। ये तो हर बंदे का काम और मकाम है।
लेकिन मेरे पाक पैगंबर आमना के दुर्र यतीम महबूब रब्बिल आलमीन खत्मुर रसूल खातिमुल मुरसलीन का मकाम और मर्तबा ये है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया जानती है, अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं। मेरे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस हदीस से बहुत सी बातें समझ आती हैं। नंबर एक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक से यह बात समझ आती है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह की महबूब तरीन मखलूक है। नंबर दो, यह बात समझ आती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रुतबा मिला है, हुजूर पाक की नबुव्वत का फैसला हो जाने के बाद मिला है। नंबर तीन, यह बात समझ आती है कि नबी किसी का शागिर्द नहीं होता, वो डायरेक्ट इल्म अमल अल्लाह से लेता है, तालीम और ताल्लुम अल्लाह से लेता है, पढ़ना पढ़ाना अल्लाह से लेता है, सीखने का मामला अल्लाह से लेता है, तरबियत अल्लाह से लेता है। वो किसी मुअल्लिम, किसी मुदर्रिस, किसी उस्ताद, किसी टीचर, किसी इंस्टीट्यूट में ट्विटर का मोहताज नहीं होता। मुझे स्कूल में बिठा दो, कॉलेज में बिठा दो, यूनिवर्सिटीज ले जाओ, मदरसे में बिठाओ, उस्ताद चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, टीचर चाहिए, वाइस चांसलर चाहिए, समझाने वाला इंस्टीट्यूट में ट्विटर चाहिए। ये अब नबी के लिए नहीं होता। नबी शागिर्द है अल्लाह का, नबी ने पढ़ा है अल्लाह से, नबी ने सीखा है अल्लाह से, नबी ने तरबियत पाई है अल्लाह से। अहले सुन्नत के इस अकीदे पे दलील ये हदीस है। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह मुझे पैदा किया, मुझ में रूह आई, मैंने आंखें खोली, अभी किसी से पढ़ा नहीं है, किसी से समझा नहीं है, कोई मदरसा कोई स्कूल ज्वाइन किया नहीं है, इबारत पढ़ ली, अल्लाह का नाम, हुजूर का नाम, पता चला नबी अल्लाह का शागिर्द होता। नबी को दुनिया में किसी से पढ़ने की जरूरतें नहीं होती, नबी डायरेक्ट उलूम अल्लाह से लेता है। हजरत आदम तो अभी किसी के पास गए नहीं है, कोई पढ़ा सीखना समझने की बात हुई नहीं है। पैदाइश के फौरन बाद आंख खुली, फराइतु अला तवाइमिल अर्शी मकतूबा, लिखा हुआ अर्श पे पढ़ लिया, पता चला नबी को अल्लाह डायरेक्ट पढ़ाते हैं। नबी का मकाम यह है कि वो अल्लाह से डायरेक्ट पढ़ते हैं। अब हजरत आदम ने अल्लाह से पढ़ लिया, हुजूर पाक की बात तो हो गई, लेकिन आपके जहन में शायद ख्याल आए या ना आए, मेरे जाने के बाद कोई बंदा, कोई ईमान का डाकू आप पे सवाल करे, उलमाए देवबंद का अकीदा गलत है, ये कहते हैं हुजूर पाक की वजह से कायनात बनी, हुजूर पाक की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम बने हैं, हालांकि कुरान ये नहीं कहता। शायद वो आपको कहे कि इन्हें फोबिया होता है ना, हदीस और कुरान को एक दूसरे के मुखालिफ दिखाने का शौक होता है कि कुरान और हदीस को एक दूसरे के अपोजिट लाओ। वो कहेंगे 27वां पारा दूसरा सफा, रब्बे कायनात ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए जिन्हों इंसान को पैदा किया, इबादत के लिए कायनात को मारा से वजूद में लाया, इबादत के लिए कायनात पैदा हुई है का कुरान कहता है, इबादत के लिए कायनात पैदा हुई, हदीस कहती है हुजूर की वजह से कायनात पैदा हुई। लिहाजा देवबंदी उलमा गलत कहते हैं, हम कुरान मानेंगे, हदीस को नहीं मानते, हम वो नहीं है, हम वो नहीं है। याद रखो, सावन के अंधे को हर चीज सब्ज नजर आती है। हाँ हाँ, उलमाए देवबंद को रब ने इल्म से नवाजा है, अकल से नवाजा है, सोच से नवाजा है, फिरासत से नवाजा है, लिल्लाहियत तकवा तहारत तज़किया से नवाजा है। उलमाए देवबंद वो है जिनके पास उलूम के पढ़ने की दरसगाह है, उलूम समझने की खानकाह है। देवबंद वाले खानकाह भी रखते हैं, देवबंद वाले दरसगाह भी रखते हैं, देवबंद वाले आले इल्म भी है, आले अक्लो फिरासत भी है। हाँ हाँ, मैं ये बात कहता हूँ, अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। देवबंद की फितरत को, देवबंद की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। देवबंद की उलूम को यूं न समझना कि ये बेदलील बात करते हैं,
उलमाए देवबंद का ऐलान है, अल्लाह का कुरान भी ईमान का हिस्सा है, रसूलुल्लाह का फरमान भी ईमान का हिस्सा है। जो बंदा कुरान न माने वो भी बेईमान है, हुजूर का फरमान न माने वो भी बेईमान। हम कुरान भी मानते हैं, फरमान भी मानते हैं, कुरान भी मानते हैं, सुन्नत रसूल भी मानते हैं, कुरान भी मानते हैं, हदीस रसूल भी मानते हैं। हम किसी एक को किसी दूसरे का मुखालिफ बता के जान नहीं छुड़ाते, बल्कि मसला वो बताते हैं जो दोनों से मिला के आता है। अगर ये बात मान ले कि हदीस में नऊजुबिल्लाह कुछ और है और आयत में कुछ और है, तो किस मुंह से काफिर को इस्लाम पेश करोगे? कुफार कहेंगे तेरे नबी और तेरा खुदा तो आपस में लड़ते रहते हैं, क्या पेश करोगे? किस दलील से पेश करोगे? किस प्रूफ ऑफ एविडेंस से पेश करोगे? कौन सा मोहम्मद सामने रख के शरीयत इस्लामिया को डिफेंड कर पाएंगे, दिफा कर पाएंगे? वो दलील तब होगी जब कुरान भी मानेंगे, फरमान भी मानेंगे। एक अजीब फोबिया है लोगों में, यकीन माने हदीस पाक खुद समझ नहीं आती और न समझ आने पर एतराज उलमा पे, मौलवी ने ऐसे मसला बताया, हदीस ज़ईफ होती है, फला होता। खुदा के बंदे, हुजूर पाक का फरमान हो अल्लाह के खिलाफ हो नहीं सकता। हाँ, ये बात है कि तेरी समझ में ना आए, ये बात है कि तेरी समझ में ना हो। मैं कुछ दिनों पहले आपकी जतोई में एक इदारे में था, तो वहाँ एक उस्ताद ने मुझसे पूछा, मौलाना रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वफात पा चुके, आप हुजूर पाक को जिंदा क्यों मानते हैं? जिंदा है या फौत शुदा है? दो में एक चीज हो सकती है, या जिंदा होंगे या फौत होंगे। आप दोनों बातें मानते हैं, फौत के बाद जिंदा, ये क्या मतलब? मैं समझा कि मौलवी साहब को इल्म है लेकिन शायद वजाहत नहीं है। मैंने कहा आपका नाम, मसलन उनका नाम था उस्मान, मैंने कहा उस्मान बेटा मुझे ये बताइए, आप ताज़े ताज़े मौलवी बने हैं, आपकी शादी हुई है? कहते जी हाँ। बच्चे हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा बच्चे का नाम क्या है? कहते हैं एली। मैंने कहा आप एली के अब्बू हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा आपके अब्बू का नाम क्या है? कहते उमर। मैंने कहा आप उस उमर के बेटे हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा दो बातें, तुम अब्बू हो या बेटे हो? नहीं समझे, जिंदाबाद। अब्बू हो या बेटे हो? इधर कहता है अब्बू, उधर कहता है बेटा हो, ये दो चीजें मुझे समझा दे। कहते मौलाना अपने बाप का बेटा हूं, अपने बेटे का बाप हूं। मैंने कहा चीज एक है, निस्बतें दो हुई तो दो दो सच्चे, तेरा अकल नहीं काम करता। फौत दुनिया के लिहाज से हुए हैं, जिंदा कब्र के लिहाज से है। नारे तकबीर, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। वजह यह है कि बंदा पूरी बात समझे। शायद यहां भी कोई कह दे अजीब बात है, मौलवी कहते हैं हुजूर की वजह से पैदा हुई कायनात, कुरान कहता है इबादत की वजह से पैदा हुआ, मसला दोनों में क्या है? मैंने कहा जी दोनों ठीक है। कहते हैं वो कैसे? आप मुझे इकट्ठे ही दे दें। एक एक रेवन वाली तरतीब कभी जाती है। मेरे भाई का मैं इखलास पर शक नहीं करता, कहीं आप उन्हें गलत कहें, मैं उन पे एतराज नहीं करता, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। तवज्जो, ये तो बहुत अच्छे हैं जिनने हाथ में हदिया दिया है। मैं ऐसी ऐसी जगह गया हूँ जहाँ लोगों ने मेरे ऊपर यूं पैसे बांटे हैं, मैंने कहा तो आपको मिरासी तो मौलवियां फर्क नहीं नजर आता। अजीब बात है, अजीब बात। हदिया हाथ से पेश किया जाता है जैसे भाई ने दिया, हदिया पेश करना और होता है, और यूं वेला भुगावण कबई बला होती है। ये बहुत अच्छा है कि हाथ पे हदिया पेश किया, ये बहुत अच्छी रिवायत है। तवज्जो मेरे दोस्तों, मैंने कहा कुरान करीम भी ठीक है, हदीस नबविया भी ठीक है। कहते हैं वो कैसे? अब मैं अपनी मिसाल देता हूं। आज यहां मैं आया हूं मौलाना मुख्तारुल हक के पास, कोई मौलाना से पूछे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी क्यों आया है, ये कोई मुझसे पूछे आप यहां क्यों आए हैं, जवाब में फर्क होगा। मुझसे पूछे क्यों आए हैं, मैं कहूंगा मौलाना मुख्तार की दावत पर आया हो। कोई अवाम से पूछे मौलवी साहब यहां क्यों आए थे, वो कहेंगे बयान करने आए थे। अब एक तीसरा बंदा कहे बातें दो हो गई, मौलवी साहब से पूछा क्यों आए, उन्होंने कहा इनकी दावत पर आया हूं। लोगों से पूछा क्यों आए,
انہوں نے کہا بیان کے لیے آئے ہیں، باتیں دو ہو گئی، ہم نہیں مانتے۔ عقل مند کہے گا اے خدا کے بندے عقل کو ہاتھ مار، یہ دونوں باتیں سچی ہیں۔ ایک آنے کا سبب ہے، ایک آنے کی وجہ ہے۔ آنے کا سبب مولانا کا دعوت دینا ہے، آنے کی وجہ بیان تقریر واعظ و نصیحت ہے۔ وجہ اور ہوتی ہے، سبب اور ہوتا ہے۔ سبب بھی سچا ہے، وجہ بھی سچی ہے۔ میں نے کہا سنو، حضور پاک کا فرمان، یہ حضور پاک کا فرمان بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ بن دنیا میں لوگوں کی پیدائش کا سبب حضور پاک کی ذات ہے، پیدائش کی وجہ اللہ کی عبادت ہے۔ حدیث بھی سچی ہے، آیت بھی سچی ہے۔ ایک چیز دونوں ہو سکتے ہیں، لہذا ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے بات چلائی تھی، میرے پاک پیغمبر کی سیرت اس وقت سے شروع ہے، ابھی رسول اللہ اس دھرتی پر آئے نہیں ہیں۔ میں نے اس پر مثال پیش کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ میں ایک دلیل آپ کی خدمت میں مزید عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے یار؟ سبحان اللہ سے آپ کو ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ سے آپ کو ثواب ہوگا، میں مطمئن نہیں ہوں گا، میں مطمئن اپنے جواب سے ہوں گا۔ میں نے پوچھا توجہ ہے، آپ کہتے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں نے پوچھا جزاکم اللہ، میں نے کہا توجہ ہے، تو اس کا جواب ہوتا ہے جی ہاں یا جی نہیں۔ تو آپ کی توجہ ہے، یہ جواب ہے۔ سبحان اللہ سے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ 500 سال گھوڑا دھرک دراسی تھے والوی و درخت دچھا ختم نہ تھی سی، وہ تمہارے واسطے، میرے واسطے تو نہیں، میں تو نہیں پہن رہا تھا۔ تو بھائی وہ آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، میرے لیے نہیں کہہ رہے، میرے لیے مجھے جواب دیجئے۔ میں یوں نہیں ہوں کہ آپ سبحان اللہ اونچی کہہ دیں تو میں کہا جی عثمان صاحب آج تقریر لمبی، آپ ایسا کہہ دیں جی میں کوئی نہ کریں تو مجمع بازوق نہیں، جی نہیں، میں نے کتنا بیان کرنا ہے وہ مجھے پتہ ہے، نہ آپ کے سبحان اللہ سے مؤثر ہونا ہے نہ متاثر ہونا ہے، تو اس لیے مجھے جواب دیں۔ توجہ ہے، جزاک اللہ۔ میرا سبحان اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، وہ آپ کہیں یا نہ کہیں، میری وجہ سے کبھی نہ کہا کریں، اللہ کے لیے کہو، یا نہ کہو تو ایسا کہہ دو، اس میں میری تقریر نہ خراب ہوتی ہے نہ میں آپ سے کہوں گا مجھے داد دو۔ لا اسألکم علیہ من اجر، ہم نے عوام سے داد نہیں لینی، ہم نے اللہ رب العزت سے لینی ہے۔ کوئی ماشاءاللہ کہے پھر بھی، کوئی استغفر اللہ کہے پھر بھی، جو حق سمجھا ہے اسے بیان کرنا سیکھا۔ میرے دوستو، میں ایک مثال اور دے رہا ہوں۔ رسالت مآب کے آنے سے پہلے حضور پاک کا ذکر، حضور پاک کے آنے سے پہلے حضور کے چرچے، حضور پاک کے آنے سے پہلے حضور پاک کے تذکرے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کھولیے روض الانف امام سہیلی کی، آپ کی مرضی، عربی زبان میں ہے، آپ کھولیے اردو زبان کے اندر شیخ التفسیر مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی سیرت المصطفیٰ جلد اول، آپ کی مرضی۔ وہ شاہ اسیہمہ، شاہ طبہ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی دنیا میں پیدائش سے پہلے کی بات ہے، یمن کا بادشاہ تھا، اسے شاہ طبہ کہتے تھے۔ وہ سفر کر رہا تھا، جب وہ اس جگہ سے گزرا جسے مدینہ طیبہ کہتے ہیں، اس وقت سے یثرب کہتے تھے، یہاں سے گزرا، رات کا وقت تھا، لشکر نے پڑاؤ کیا، لوگ سو گئے، ہر اس کے لشکری نے اپنے اپنے خیمے دور لگا لیے۔ ان لشکریوں میں کچھ علماء ربانیین بھی تھے جو تورات و زبور و انجیل پر نظر رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، انہیں سمجھ آتی تھی کہ اللہ کی کتابوں میں کیا کیا وعدے وعیدیں موجود ہیں۔ علماء صبح اٹھے تو انہوں نے سنگریزوں کو دیکھا، وہ حیران رہ گئے، وہاں کی ریت کو دیکھا، ششدر رہ گئے، وہاں کے درخت جو کھجور کے تھے اسے دیکھا، سرگرداں ہوئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے اے مولویوں، جو باتیں ہم نے تورات میں پڑھی ہے، انجیل میں پڑھی ہے، زبور میں پڑھی ہے، صحائف میں پڑھی ہے کہ آخری نبی آئے گا، اس کا جائے مدفن، اس کا دار الحجرہ، اس کا جو بیت، اس کا جو گھر، اس کا جو مقام و مرکز و منبع ہوگا، وہ اس شہر سے باتیں ملتی جلتی ہیں، اس کے سنگریزے، اس کے پہاڑ، اس کے پتھر، اس کی ریت، اس کا علاقہ، یہاں کے درخت ہمیں بعین ہی وہی بتاتے ہیں جو حضور پاک کے آنے کا وعدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ کیا کریں؟ بہت اچھا مقام، سب نے فیصلہ کیا یہاں زندگیاں گزار دو،
यहां रह जाओ। आखिरी नबी के इंतजार में जो किताबों में पढ़ा, क्या करेंगे इलाकों में जाकर, विद फैमिली बादशाह के साथ चल रहे हैं। सुबह बादशाह को कहते हैं हम तेरे साथ नहीं जाते, इजाजत दे, यहां रहना चाहते हैं। सुबह हुई, बादशाह ने कूच का ऐलान किया। वहां दरबारी जो ठहरा था उसने कहा उलमा की जमात आपसे मिलना चाहती है। बादशाह ने उलमा की बात को तस्लीम किया, मुलाकात का वक्त दिया, दरबार सज गया। कहा जी पेश कीजिए। एक आलिम दीन बतौर नुमाइंदा, बतौर डेलीगेशन वफद के पेश हुए। उन्होंने कहा हम सब उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि हम इस शहर में रहना चाहते हैं। बादशाह ने कहा मुझसे कोई आपकी खिदमत में कमी हुई? मैंने कोई आपसे ज्यादती की? आप मेरे साथ नहीं रहते। उस वक्त के बादशाह उलमा के कदरदान होते थे। नहीं समझे? नहीं समझे? उस वक्त के बादशाह उलमा के कदरदान होते थे, उलमा की तजलील वाले नहीं होते थे। आजकल हमारे यहाँ अजीब सिलसिला है, मौलवी को लोगों ने ऐसे बदनाम कर लिया है, आलिम पर ऐसी बातें कसते हैं लोग, मैं हैरान हो जाऊं। एक शख्स कह रहा था मुल्लों की दौड़ मस्जिद तक, बस। मैंने कहा जुमला कहते हुए तुझे कभी सोच नहीं आई कि प्रोफेसर की दौड़ यूनिवर्सिटी तक, टीचर की दौड़ स्कूल तक, पुलिस वाले की दौड़ थाने तक, आर्मी वाले की दौड़ उसकी कमांडिंग गाह तक, ये तुझे कभी नहीं आया? सिर्फ मौलवी पे नजर आते, चुप। तो मैंने कहा सिर्फ उलमा को बदनाम करना आपका काम है। भाई मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक तो ये मौलवी के हक की बात है कि आलिम वो है जो अल्लाह के घर में रहता है, फौजी वो है जो अपनी कमीन गाह में रहता है, पुलिस वाला वो है जो थाने में रहता है, प्रोफेसर वो है जो यूनिवर्सिटी में रहता है। ये तो आलिम की अच्छाई की बात थी, तूने इसे खामखा से बुराई बना दी। या तो मैं को उठा रहे हो या हजरत दी कुर्सी गिरा। नहीं मैं आखिर भी में बस ना ना कट्टे बांधो मैं मौलाना कुर्सी उठवाए। बैठ जाओ हजरत शेख ना मैं ठीक है मैं आता जाना मेरा हुक्म है। मैं छोटा बाल इत्था बह के हजरत दे बयानात सुने थोड़ा सा हुन मैं बाह के गाल करा ना जी वो दुई दे देते तो इतना गिरना है अल्लाह सारी मोहब्बत से नाता है बेटे। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ये तो आलिम की इज्जत है, क्योंकि कल कोई कहे पायलट की दौड़ जहाज तक, इसका माना पायलट जहाज का माहिर है। फौजी की दौड़ कमीन गाह तक, इसका माना वो अपनी ड्यूटी पर मुखलिस है। पुलिस वाले की दौड़ थाने तक, इसका माना वो अपनी ड्यूटी में मुखलिस है। प्रोफेसर की दौड़ यूनिवर्सिटी तक, इसका माना वो अपने काम में मुखलिस है। उस्ताद की दौड़ स्कूल तक, इसका माना वो हलाल खा रहा है। ये एतराज क्यों है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक? ये तो आलिम की हक की बात थी, लेकिन एतराज किया, लेकिन खामखा से उलमा को छेड़ा। चलो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा शाहिद तुब्बा के सामने उलमा पेश हुए। उसने कहा मैंने आपकी कदर में कमी नहीं की, आप मुझसे नाराज हो। वो कहने लगे जी हम आपसे नाराज नहीं हैं, बल्कि हमने तौरात ज़बूर इंजील और सहायत में पढ़ा है जो आखिरी नबी आएंगे ये उनकी जगह होगी, लिहाजा हम आखिरी नबी के इस्तकबाल में यहाँ रहना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दीजिए हम यहाँ रहे। मैंने कहा उस वक्त के बादशाह उलमा के कदरदान थे। उसने कहा कितने उलमा हैं? गिनती शुमार हुई, 400 उलमा निकले। कहा 400 आदमियों को घर बनवा के देना मेरी जिम्मेदारी, आप यहां रिहाइश रखें। 400 उलमा को घर दिए और एक बात, एक घर और बनाया, बाला खाना, डबल मंजिला। इमामे मौलाना इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह सीरतुल मुस्तफा पढ़ रहा हूं, उसने कुछ लिख कर उस जमाने में इन उलमा के हवाले किया। कहा उलमा की जमात, जिस नबी की रिफाकत के लिए मेरी रिफाकत को तुमने छोड़ा है, जिस नबी के इस्तकबाल के लिए मुझे छोड़ा है, लिहाजा मेरी तरफ से भी एक तोहफा है। तुम मुलाकात करना उस नबी से तो तुम ये चेहरा ये कागज उस तक देना जो उस जमाने का कागज था, ये चिट्ठी। अगर तुम्हारी नस्लें जाए तो वसीयत करके वहां तक देना। शाहिद तुब्बा ने क्या लिखा? अरबी जुबान के अशआर हैं। शाहिद तुब्बा लिखता है शहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिइन निसमी
फलो मुद्द उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्न अम्मी वजाहत्तु बिस्सैफि अअदाअहू वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी। जलालपुर के दोस्तों, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, उर्दू का दामन तंग है कि मैं इसके लफ्ज आपकी खिदमत में बतौर मतलब पेश कर सकूं। मैं मफहूम अर्ज करने लगा हूं। बादशाह तुब्बा कहता है, ए मेरे पाक पैगंबर, शहीद अला अहमद अन्नहु, मैं दिल से गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी, उस अल्लाह के रसूल हैं जिसने इस कायनात को बनाया है। और मैं ये बात गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। फलो मुद्द उमरी, ए काश अल्लाह मेरी उम्र को लंबा कर दे, इला उमरी ही, आपकी उम्र तक, अगर मैं आपके जमाने को पालूं, फलो मुद्द उमरी, आप तक पहुंच जाऊं, लकुन्तु वज़ीरन लहू, मैं आपका वजीर बनूंगा, वब्न अम्मी, और चचाजाद भाई बन के काम करूंगा। वजाहत्तु बिस्सैफि अअदाअहू, तलवार अपनी लाऊंगा, आपका दिफा करूंगा। वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी, आपको बचाऊंगा, अपना सीना पेश करूंगा। मैं पूरी बात की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं। ये उसने क्यों कहा कि लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्न अम्मी? क्या बात है, हाय, 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 क्या बात। वजीर कहा, ये तो समझ आता है, वब्न अम्मी का माना चचा का बेटा। मैं तो सोत्र बड़सा, क्यों तुम्हारा चचाजाद भाई बनूंगा? चचाजाद भाई बनना तो अपने हक हाथ में नहीं होता, अपने इख्तियार में नहीं होता। ये क्यों कहा? मेरे दोस्तों, वो कहना चाहता है खिदमत की इंतहा, वो बताना चाहता है ताउन का आखिर कि लकुन्तु वज़ीरन लहू, अगर मैं आपका वक्त पा लेता तो आपका वजीर बनता। नंबर एक, बादशाहत हवाले आपके करता, खादिम आपका बनता। नंबर दो, वब्न अम्मी, चचाजाद भाई बनता। क्या मतलब? दूसरे पैसों पे आते हैं, दूसरे तनख्वाहों पे आते हैं, दूसरे उजरत पे आते हैं, दूसरों को लैंड लॉर्ड गाड़ियां चाहिए, पैसा चाहिए, माल बटोरने आते हैं। नहीं, मैं आपका अपना बन के फी सबीलिल्लाह खिदमत करता, फ्री ऑफ कॉस्ट आता। तो मेरे दोस्तों, ये हुजूर पाक के आने से पहले हुजूर पाक का जिक्र है। मैंने बात चलाई थी कि मेरे पाक पैगंबर के चर्चे, मेरे पाक पैगंबर से पहले, मेरे पाक पैगंबर के तज़किरे, मेरे पाक पैगंबर से पहले, मेरे पाक पैगंबर की बातें मेरे पाक पैगंबर से पहले है। इससे समझ आया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वो शख्सियत, वो मर्तबा, रुतबा, हैसियत और वैल्यू रखने वाले हैं, अभी आए नहीं है, दुनिया पहचान चुकी है। तो मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए खुलासा पेश कर रहा हूं। जिस नबी का मर्तबा ये हो, जिसका मकाम ये हो, इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा रुतबा रखे, वो नबी अल्लाह ने आपको और मुझे बगैर दरखास्त के दिया है। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी थी। आज हमें चाहिए हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें, अहकाम पे अमल करें, अवामिर को बजा लाएं, मनहियात से रोकें। मेरे पाक पैगंबर ने सच का हुक्म दिया है, उम्मत सच बोलेगी, पता चलेगा ये पैगंबर के वफादार हैं। हुज़ूर पाक ने झूठ से बचने का हुक्म दिया है, हम झूठ से बचेंगे। हुज़ूर पाक के ताबेदार हैं। रसूलुल्लाह ने औलाद को माँ बाप की इज्जत सिखाई है, हमने इज्जत करनी है। हुज़ूर पाक के हुक्मदार हैं, माँ बाप को औलाद के हुकूक देने में अच्छा नाम, अच्छी तालीम, अच्छी जगह शादी कहा है, वालिदैन इस पर बजा लाएंगे। वो हुज़ूर पाक के हुक्मदार हैं। हुज़ूर पाक ने ताजर को दियानत और अमानत के साथ तिजारत सिखाई है, लिहाजा वो इस तरह तिजारत करेगा। ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का हुक्मदार है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हुकूक की अदायगी में बाकियों के हुकूक को खाने से मना किया है, ये हुकूक खाने से रुकेगा। इसका माना ये हुज़ूर पाक का ताबेदार है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अखज़ा शिब्रम मिनल अर्ज़ि बिगैरि हक़्क़िन युतफ़िक़ुल्लाहु यौमल क़ियामत सबअ अर्ज़ीन। अगर किसी एक की जमीन एक बालिश्त भी तुमने हथिया ली, अल्लाह 7 जमीनों का गले में तोप पहना देंगे। अगर मैंने अपने चौधराहट पर, मैंने अपने पैसे पर, मैंने अपनी वजाहत पर, अपनी जे-जे-कार की बुनियाद पे किसी की जमीन को खा लिया, कल कयामत में मुजरिम बनूंगा। मेरे पाक पैगंबर ने तौहीद सिखाई है, रिसालत का दर्स दिया है, असमत सहाबा का कायल होना हमें हमारे पाक पैगंबर ने बताया। अल्लाह अल्लाह फी
اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تنقید کرنی ہے، اعتراض کرنا ہے، اشکال کرنا ہے، ڈانٹ لگانا ہے، کوئی بات کرنی ہے، میرے صحابہ سے اس طرح کا معاملہ نہ کرنا. کیوں؟ پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں فلو انفقا اگر تم میں کوئی ایک آدمی، کوئی ایک بندہ انفق فی سبیل اللہ مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، وہ احد پہاڑ سونا اللہ کے راستے میں دے دے، صحابہ ایک مٹھی جو دے دے، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے. حضور پاک نے آل بیت کی قدردانی سکھائی. فرمایا مثل آل بیتی کسفینۃ نوح، آل بیت کی مثال کشتی نوح ہے. فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. جو ان کے ساتھ چلے گا نجات پائے گا، ان سے ہٹے گا گمراہ ہو جائے گا. لہذا محبت اہل بیت بھی ہماری ذمہ داری ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء امت، اپنے بزرگ مشائخ، اپنے بڑوں کی قدردانی سکھائی ہے اور ارشاد فرمایا وَلَعْنَ آخر هَذِهِ الْأُمَّةِ أَفْضَلَهَا. اگر باقی طبقہ پہلے طبقے پر اپنے کابرین سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اللہ رب العزت اس پر آفت نازل کریں گے. پیغمبر کی تعلیمات، جھوٹ سے بچنا، زنا سے بچنا، غیبت سے بچنا، بہتان سے بچنا، حقوق کی ادائیگی، اگر یہ ہمارے اندر ہے تو ہم حضور کے وفادار ہیں. اور اگر نہیں ہے، یہ جلسہ سننا، یہ سنانا، یہ جمع ہونا، یہ بیٹھنا، بٹھانا، بولنا، بلوانا، سب ضائع، سب گیا. کرتا دھرتا دھرے کا دھرا رہ جائے گا. بس آخری بات پہ بات ختم کر رہا ہوں. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ آپ کو اور مجھے پیغام دے گئے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.